ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So we'll continue our discussion on the shloka number 1.8.34. भारावतारण्य भारावतारणान्याने भुवो नाव इवो दधु सीदन्त्यभूरि भारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः भारावतारण्यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सिद्धन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मा भुवार्थितः। Bharavatar Naya, just to reduce the burden to the word. Anye, others. Bhuva, of the word. Navaha, both. Iva, like.
Udadhav on the sea. Siddhantya grieved. Bhuri extremely. Bharena by the burden. Chataha you were born. He certainly. Atma Bhuva by Brahma. Artitaha being prayed for. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Vivekananda Swami Srila Prabhupada ki jai. Others say, others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish your trouble. Purport. Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayan. Narayan, as Garbhodakshai Vishnu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and the first living being, Brahma, was born on a lotus flower, grown out of the transcendental abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padmanabha. Brahma is known as Atmabhu because he was begotten directly from the father without any contact of Mother Lakshmi Ji. Lakshmi Ji was present near Narayan, engaged in the service of the Lord. And still, without contact with Lakshmi Ji, Narayana begot Brahma. That is omnipotency of the Lord. One who foolishly considers Narayana like other living beings should take a lesson from this. Narayan is not an ordinary living being. He is a personality, is the personality of Godhead himself. And he has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. An ordinary living being begets a child by sexual intercourse, and he has no other means to beget a child other than the one designed for him. But Narayana, being omnipotent, is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do anything and everything by his various potencies, very easily and perfectly. Brahma is therefore directly the son of the Father and was not put into the womb of a mother. Therefore, he is known as Atmabhu. This Brahma is in charge of further creations in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe, there is a transcendental planet known as Shvetadip, which is the abode of Kshirodakshaya Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution. And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahmaji consults and prays to the Kshirodakshaya Vishnu for an incarnation and solution to the problems. Such a problem arose when Kamsa, and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with other demigods, prayed at the shore of Kshirodaka ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devi.
So some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahma ji. तो कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वो कंटिन्यू हो रही है यहाँ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अदर्स से, कुछ कहते हैं, दैट द वर्ल्ड, जगत है, बीइंग ओवरबर्डन लाइक अ बोट एट सी, एक जो नाव होती है सी में यानी समुद्र में, जैसे वो ओवरबर्डन हो जाती है, उसी प्रकार क्या हुआ कि ये सृष्टि ओवरबर्डन हो गई। ओवरबर्डन मतलब बोझिल, बोझ के तले दब रही। एंड इज मच अग्रीव्ड, और बहुत दुखी, कष्टमय स्थिति में थी। एंड दैट ब्रह्मा, हु इज योर सन, जो ब्रह्मा थे, जो ब्रह्मा है, जो भगवान के पुत्र हैं, प्रेड फॉर यू, भगवान से प्रार्थना की। हाँ, ये कुंती महारानी भगवान को रेफर कर रही। एंड सो यू हैव अपीयर्ड टू डिमिनिश द ट्रबल, इसीलिए आप क्या किए हो, ये ट्रबल को डिमिनिश करने के लिए प्रकट हुए हो। तो क्या हुआ, हम सभी को ये स्मरण है कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व कौन, भूमि देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भूमि देवी के साथ क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान के प्राकट्य के लिए, और फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वही प्रेयर, वही जो बात है, भगवान क्यों प्रकट हुए, अनेक अनेक कारण बताए गए, और मुख्य तो इन्हीं कारण है, और बाकी सब जितने भी जैसे प्रतीत होते हैं कारण, वो सब इन तीन मुख्य कारणों की कैटेगरी में है। परित्राणाय साधना, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of नारायण। जो ब्रह्मा जी हैं वो किनके पुत्र हैं, डायरेक्ट पुत्र किनके हैं? स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए भगवान नारायण के नाभि कमल से, इज अ डायरेक्ट सन ऑफ नारायण। नारायण एज गर्भोदक्षाय विष्णु फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्ड द मटेरियल यूनिवर्स। सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? हाँ, हाँ, नारायण जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में कहाँ एंटर हुए? इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तो नारायण अलग अलग लेवल पे अलग अलग वहां पर रेफर हो सकते हैं, जैसे विष्णु, कृष्ण विष्णु के रूप में हम रेफर करते हैं। वैसे नारायण गर्भोदक्षाय विष्णु को भी नारायण कहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु को भी नारायण कह सकते हैं, और महाविष्णु को भी नारायण कह सकते हैं। और नारायण जो है, आदि नारायण, वो प्रथम चतुर्व्यूह के आदि संकर्षण से जो प्रकट होते हैं वो है नारायण। तो यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु को नारायण के रूप में रेफर किया जा रहा है। विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट के बिना मैटर कैन नॉट क्रिएट। मैटर क्या नहीं कर सकता? क्रिएशन नहीं कर सकता। दिस प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। और ये जो प्रिंसिपल है, ये वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन से चल रहा है, बहुत ही शुरू से। द सुप्रीम स्पिरिट एंटर्ड द यूनिवर्स, जो भगवान, परम भगवान है, वो इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए। एंड द फर्स्ट लिविंग बीइंग ब्रह्मा वाज बोर्न ऑन द लोटस फ्लावर ग्रोन आउट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एब्डोमेन ऑफ विष्णु। तो जो महाविष्णु है वो इस ब्रह्मांड के परे, ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड,
वो महाविष्णु के रोम कूपों से निकलते हैं। और उन अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो बाहर है महाविष्णु भी, वो जब सृष्टि होती है तब अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु, जो कारण जल में लेटे हुए हैं और जिनके, हाँ, रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में महाविष्णु अपने आप को क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं, विस्तारित करते हैं। और जब वो विस्तारित करते हैं तो वो गर्भोदक सागर में प्रवेश करते हैं और वहां से उनके नाभि कमल से कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। विष्णु इज देयरफॉर नोन एज पद्म नाभ। नाभ मतलब नाभि, पद्म मतलब कमल, पद्मनाभ। और ब्रह्मा इज नोन एज आत्मभू, स्वयंभू। He was directly born from the father without any contact of mother Lakshmi जी। स्वयंभू नारद शंभू कुछ लोग आता है। तो आत्मभू और पद्मनाभ, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ऑफ मदर लक्ष्मी जी, मदर लक्ष्मी के बिना किसी कॉन्टेक्ट के वो प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी वॉज प्रेजेंट नियर नारायण, नारायण मतलब गर्भोदक साई विष्णु को रेफर कर रहे हैं यहाँ। एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में लगी हुई। स्टिल, फिर भी, विदाउट कॉन्टेक्ट विद लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के कॉन्टेक्ट के बिना नारायण बिगॉट ब्रह्मा। क्या किसी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किए भगवान नारायण ने। दैट इज द ओमनीपोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। और यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। भगवान को लक्ष्मी जी का सहयोग नहीं चाहिए, भगवान को किसी का सहयोग नहीं चाहिए कुछ भी करने। स्वराट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व सर्वज्ञ है। और जितना भी ज्ञान, जितनी भी शक्ति, जितनी भी बुद्धि, जितना भी कुछ ये प्रकट होता है, ये सब भगवान से प्रकट होता है। ये है भगवान, और ये भगवान की शक्ति मिलता है। और जो वन हु फूलिशली कंसिडर्स नारायण लाइक अदर लिविंग बीइंग्स शुड टेक लेसन फ्रॉम दिस। और जो व्यक्ति भगवान नारायण को बाकी जीवों के समान समझता है, उसको यहां से समझना चाहिए। नारायण इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, कोई हमारे समान जीव तत्व नहीं। इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट हिमसेल्फ, स्वयं भगवान है। And he has all the potencies of all the senses in the parts of his transcendental body। समस्त शक्ति और समस्त शक्ति के स्रोत हैं भगवान। An ordinary living being begets a child by sexual intercourse। एक स्त्री पुरुष के संग से क्या होता है, एक पुत्र का उत्पन्न या संतान की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है संतान उत्पन्न करने का। आजकल तो खैर थोड़े से एडवांस हो गए लोग, तो जैसे व्यास देव जी ने किया था टेस्ट ट्यूब बेबीज, वो भी कर रहे हैं आजकल, लैब बेबीज भी हो रहे हैं, पर उस फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट देन अगेन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल के जो क्या कहते हैं उसको, जो जीवाणु हैं, उनको मिला करके प्रकट होंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं। इंडिपेंडेंटली, वो तो जो गर्भ है वो स्थानांतरित किया गया है। प्रोसेस तो दो जीवा जीवाणुओं के मिलने से ही हो रहा है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में हो चाहे कहीं नहीं, है ना। और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है दैट इज बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट नारायण बीइंग ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान होने के कारण, इज नॉट बाउंड टू एनी कंडीशन ऑफ एनर्जी। तो किसी भी कंडीशन से बाउंड नहीं है एनर्जी की।
भगवान इन सबसे परे हैं। ही इज कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट, पूर्ण है और स्वराट है, to do anything and everything by his various potencies, अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा वो कुछ भी कर सकते हैं, वेरी इजीली एंड परफेक्टली। क्यों कर सकते हैं भगवान? ही इज ब्रह्मा इज therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother। तो ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया भगवान ने, तो भगवान को किसी सेकंड व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम्म? जैसे नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल लिविंग एंटिटी जब संतान उत्पत्ति करती है, तो वहां पर दो लोगों के अंश का मिश्रण है, और वहां से वो संतान प्रकट होता है। गर्भ अलग अलग हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकता है, लैब में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है गर्भ, पर दो जीवों के अंश के मिश्रण से एक गर्भ प्रकट होता है। हाँ, उसमें भी एक मेल एक फीमेल उससे। परंतु नारायण ने ब्रह्मा जी को ऐसे प्रकट नहीं किया। नारायण ने ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट किया? नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली Brahma ji is therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother। और इसीलिए ब्रह्मा जी जो है वो अपने पिता के पुत्र हैं और किसी भी माता के गर्भ में वो प्रवेश नहीं किए। Therefore he is known as Atmabhu, Swayambhu। This Brahma is in charge of further creation of in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent। ये जो ब्रह्मा है, हाँ, ये इंचार्ज है ऑफ फर्दर क्रिएशन इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मा है कौन है? इंचार्ज है। फर्दर क्रिएशंस होती हैं यूनिवर्स में, सेकेंडरी सर्ग विसर्ग इसके इंचार्ज, सेकेंडरीली रिफ्लेक्टेड बाय द पोटेंसी ऑफ द ओमनीपोटेंट। जो ओमनीपोटेंट है उनकी पोटेंसी से रिफ्लेक्टेड है। विद इन द हेलो ऑफ द यूनिवर्स देयर इज अ ट्रांसेंडेंटल प्लैनेट नोन एज श्वेत द्वीप। तो इस ब्रह्मांड में क्या है? एक प्लैनेट है ऊपर की तरफ। क्या नाम है उसका? श्वेत द्वीप, विच इज द अबोर्ड ऑफ शिरोदक्षाय विष्णु। जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनके फर्दर एक्सपांशन है शिरोदक्षाय विष्णु, और उनका प्लैनेट है श्वेत द्वीप, विच इज द अबोर्ड ऑफ द शिरोदक्षाय विष्णु, द परमात्मा फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, जब भी इस ब्रह्मांड में कोई भी ट्रबल होती है, कोई भी इशू होता है जो कि संसार के डेमिगॉड्स नहीं सॉल्व कर पाते, दे अप्रोच ब्रह्मा जी। वो किसको अप्रोच करते हैं? ब्रह्मा जी को सोल्यूशन पे। एंड इफ इट इज नॉट सॉल्व बाय इवन ब्रह्मा जी, और यदि ब्रह्मा जी भी नहीं सॉल्व कर पाते उसको, देन ब्रह्मा जी कंसल्ट्स एंड प्रेज to the Shirodakshai Vishnu for an incarnation and solution to the problems। और यदि ब्रह्मा जी नहीं कर पाते तो किसको प्रार्थना करते हैं? शिरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। जैसा हमने देखा, हमें पता है कि भगवान के प्राकट्य से पूर्व भूमि देवी और अन्य देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी शिरोदक्षाय विष्णु के पास गए क्षीर सागर के तट। सच अ प्रॉब्लम अरोज, और ये प्रॉब्लम कब आई थी? जब Comes and others were ruling the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the asuras। और जो ये भूमि है वो क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन हो गई थी इन असुरों के भार से। ब्रह्मा जी along with other demigods, अन्य सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने क्या किया? प्रेड एट द शोर ऑफ क्षीरोदक ओशन। तो क्षीर सागर के तट पर गए और वहां पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। एंड दे वर एडवाइज्ड ऑफ द डिसेंट ऑफ कृष्णा एज द सन ऑफ वासुदेव एंड देव। और वहां पर ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकाशित किया गया और उनको बताया गया क्या? कि भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। सो सम पीपल से दैट द लॉर्ड अपीयर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ ब्रह्मा जी।
इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के कारण प्रकट हैं। तो ये जो तत्व है कि अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं भगवान के प्राकट्य के, ये जो अलग अलग कारण है भगवान के प्राकट्य के, ये बहुत अद्भुत है। और सारे जो कारण है वो क्यों है, अगर हम इनको देखें तो तीन कैटेगरी: परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही कारण है। हाँ, इन कारणों के कारण भगवान प्रकट हो गए हैं। नेक्स्ट श्लोक है ये भी। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणं स्मरणार्हानि करिष्यामीति केचन। भवे, in the material creation, asmin, this klishyamananam, of those who are suffering from avidya, nescience, kama, desire, karma, bhi, by execution of fruitive work, shravana, hearing, smarana, remembering, arhani, worshipping, karishyan, may perform, iti, thus, kechan, others. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And yet others say that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from the material pangs might take advantage and gain liberation. In the Srimad Bhagavad Gita, in the Srimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that He appears in every millennium just to re-establish the way of religion. The way of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious person. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto Him in spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and living beings are subordinate to. Therefore, the duty of the living being is just to serve Him only. Unfortunately, the illusion living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by the material desires. This desire is called avidya or nescience. And out of such desire, the living beings make different plans for material enjoyment, centered about a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of this nescience, one cannot get free from threefold miseries of material life. This is the law of nature. The Lord, however, out of His causeless mercy, because He is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them and renovates the principle of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto Him. Adoption of all mentioned above items or any one of them can help a conditioned soul get out of the tangle of nescience and thus become liberated from all material sufferings created by the living being illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो यहां पर कुंती महारानी आगे क्या कह रही है? एंड येट अदर्स से, और कुछ लोग कहते हैं क्या,
that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from the material pangs might take advantage and gain liberation. और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आप आए हैं, क्यों आए हैं? ताकि भक्ति की स्थापना कर सकें। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, एंड सो ऑन, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, निवेदनम, and that the conditioned souls suffering from the material pangs might take advantage and gain liberation, ताकि जो कंडीशन सोल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, इन सभी का लाभ उठा सकती हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इन द श्रीमद् भागवतम द लॉर्ड असर्ट्स, भगवान कहते हैं, that he appears in every millennium just to re-establish the way of religion। हाँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। The way of religion is made by the supreme law. No one can manufacture a new path of religion. धर्म जो है वो भगवान बनाते हैं, अपने मन से कोई धर्म नहीं बना सकता। As is the fashion for certain ambitious person, the fashion है कुछ ambitious person का। The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto him in spontaneous love। जो वास्तविक धर्म है क्या है? हाँ, भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी को स्वीकार करना और उनको प्रेममय सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जब जब बाहर गए थे, इंडिया के बाहर, तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा कहने लगे प्रभु, हम तो अपने धर्मों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, फिर आप हमको क्या सिखाने हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, यस, आई नो that you are following your religion, but I want to see whether you have got the result of the religion। और result of the religion क्या होगा? फिर प्रभुपाद ने बोला that you will love God, you will serve God। ये प्रभुपाद है, and this is what प्रभुपाद is saying, कि आप भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे अगर आप वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं। यही वास्तविक धर्म है। और सब क्या है? और सब कैटव धर्म है। धर्म के नाम पर ठगाई है, धोखाधड़ी है, मूर्ख बनाना है, कपट धर्म है। ये धर्म नहीं है। संसार के जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म है, यदि वो मुख्य धर्म के अंतर्गत उसको पुष्ट करने के लिए नहीं है, कोई भी प्रकार के धर्म क्यों नहीं संसार, यदि वो मुख्य धर्म के अंतर्गत, मुख्य धर्म क्या है कि आप भगवान से प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसके अंतर्गत उसको पुष्ट करने के लिए नहीं है, तो वो कैटव धर्म है। जीव के साथ ठगाई हो रही है, जीव के साथ ठगाई हो रही है। The only function of a living being is to render service to the Lord। A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose। उसका यही स्वरूप है, यही स्वभाव है, यही गति है। The only function of the living being is to render service to the Lord। भगवान की सेवा करनी उसे। The Lord is great and living beings are subordinate to him। Therefore, the duty of the living being is just to serve him only। Unfortunately, the illusion living beings, out of misunderstanding only, जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, उसके कारण ही क्या करते हैं? बिकम सर्वेंट्स ऑफ दिस सेंसेस बाय मटेरियल डिजायर्स। क्या हो जाते हैं? इंद्रियों के दास बन जाते हैं भौतिक डिजायर से। दिस डिजायर इज कॉल्ड अविद्या। और ये जो इच्छा है वो क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? अविद्या। अविद्या मतलब जो विद्या नहीं, जो ज्ञान नहीं, भगवान के साथ अपने संबंध और संबंध के साथ जो कार्य है उसमें एंगेज किए बिना, प्रयोजन की प्राप्ति के लक्ष्य के हेतु
जीव क्या करता है, संसार में इंद्रियों का दास बन जाता है, और यही अविद्या में वो जीव फंस जाता है। एंड आउट ऑफ सच डिजायर द लिविंग बीइंग मेक्स डिफरेंट प्लान्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट सेंटर्ड अराउंड परवर्टेड सेक्स लाइफ। और उसके सारे प्लान चलते हैं संसार में अलग अलग प्रकार से भोग लग करने के। और यहाँ पर जो है, जो मुख्य केंद्र का आकर्षण रहता है वो क्या रहता है, सेक्स सेक्स लाइफ, परवर्टेड सेक्स लाइफ। परवर्टेड सेक्स लाइफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रेम है, हाँ, आदि काम जिसको बोलते हैं, आदि काम क्या क्या है, भगवान की प्रेममय सेवा करना। वो जब इस संसार में आता है, हाँ, ये कामना जीव की वास्तविक कामना है, इसलिए इसको आदि काम कहते हैं। यही कामना कि भगवान की मुझे प्रेममय सेवा करना है, यही मेरी कामना है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी गति है। जब वो जीव उस उस पॉइंट को भूल के विकृत होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? फिर वो जो सेंटर है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की सेवा करनी है, वो परवर्ट होके आ जाता है, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी सेवा करनी है। और वो मेरी प्रसन्नता का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो परवर्टेड सेक्स लाइफ, विनायक कल्याण, है ना, सेंटर वहां है। और उसमें भी और सूक्ष्म सूक्ष्म जाते हैं तो प्राइड नेक्स्ट लेवल पे जाता है, और उसके भी नेक्स्ट लेवल पे प्रतिष्ठा जाती है। और जब ये तीनों की पूर्ति नहीं होती तो द्वेष होता है। लस्ट बेस लेवल से शुरू होता है। लस्ट का जो स्वरूप है, स्थूल काम जिसको हम बोलते हैं, स्थूल काम, वो लस्ट है। और सूक्ष्म काम क्या है, कि व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, प्राइड, ये सूक्ष्म काम। अपने अहंकार की वो स्वयं पुष्टि करता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म काम। वो अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए हर चीज करता है, समाज में उसकी इज्जत हो, समाज में उसकी वैल्यू हो, समाज उसको जाने, समाज उसको समझे, लोग, पीपल शुड रिकॉग्नाइज हिम, गो डाउन टू हिम, ये सब। और जो प्रतिष्ठा है वो क्या है, उसी सूक्ष्म काम को जिसको मैं अभी तक सर्व कर रहा था, समाज मुझे जाने, समाज माने, अब वो चाहता है कि दूसरे लोग भी उसको स्वीकार। सूक्ष्म काम में प्राइड में क्या है कि मैं ग्रेट हूँ, एक स्वयं को मानता है। और प्रतिष्ठा क्या है, कि ये लोग भी माने कि मैं ग्रेट, मेरी स्थापना हो, यह है प्रतिष्ठा। परंतु एक जो भक्त होता है, वो जिससे प्रेम करता है, किससे प्रेम करता है? भक्त अपने आचार्य से प्रेम करता है, और अपने भगवान से प्रेम करता है, और भगवान के समस्त पार्षदों से प्रेम करता है। तो भगवान, वो भक्त चाहता है उनकी स्थापना हो, मेरी स्थापना नहीं हो, मेरा कीर्तन नहीं हो, मेरी कथा नहीं, भगवान की कथा हो, भगवान का कीर्तन हो, मेरी सेवा नहीं, भगवान की सेवा। इसको कहते हैं प्रेम। भगवान स्थापित होने चाहिए, आचार्य स्थापित होने चाहिए, स्थापित होने चाहिए। And out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered around poverty sex life. हो सकता है कुछ लोग इस परवर्टेड सेक्स लाइफ से ऊपर उठ जाए तो फिर वो ईगो को ही सर्व करे, समाज में इज्जत पाने के लिए वो कुछ नहीं करे, पहले स्वयं को बड़ा बनाने के लिए करें और फिर उसी बड़े को दूसरे के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करवाने के लिए करें, कि समाज भी मुझे रिकॉग्नाइज करता है, मुझे बड़ा अवार्ड मिला है, फलाना मिला है, ढिमाका मिला है। भक्त को अवार्ड नहीं चाहिए होता है, भक्त को सेवा चाहिए, भक्त को कथा चाहिए, भक्त को कीर्तन चाहिए। भक्त अपनी सेवा से प्रसन्न रहता है। त्वम सुखम सुखित्वम।
जिसमें भगवान प्रसन्न है, जिसमें आचार्य प्रसन्न है, जिसमें देवी प्रसन्न है, वही वो करता है। इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करता। और श्री प्रभुपाद भी कहते हैं वी डोंट हैव टू प्लीज, पब्लिक को प्लीज नहीं करना है हमें। वी आर डूइंग अवर सर्विस टू प्लीज अवर आचार्यस, अवर प्रीडिसेसर्स। वी आर नॉट डूइंग अवर सर्विस टू प्लीज द पब्लिक। हम पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो बेटा, हम अपने आचार्यों को और अपने गुरुजनों को और अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी स्थापना करने के लिए कर रहे हैं कि वो यत्र वो तो है ही सर्वत्र, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। भगवान तो है ही, आचार्य भी है ही, अप्रकट हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोई सिंसियर सोल नहीं दिखती, तो आचार्य, गुरुजन और भगवान और भक्ति सब विलुप्त हो जाता है। लेकिन एक भक्त का क्या कर्तव्य होता है, जो प्रभुपाद ने किया, यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण जो है उनको प्रकट करा दिया। ये दिखाता है कि प्रभुपाद कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। इसको कहते हैं प्रेम। ये है प्रभुपाद का प्रेम। कृष्ण की स्थापना होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति की स्थापना होनी चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों की स्थापना होनी चाहिए। जहां गए प्रभुपाद अपने, गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की स्थापना है। जहां गए प्रभुपाद यही बोले। क्या बोले प्रभुपाद? प्रभुपाद सिर्फ ये बोले, हाँ, कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। ये चाहते हैं प्रभुपाद, ये चाहते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कभी क्रेडिट नहीं लिया, इतनी बड़ी सेवा की प्रभुपाद ने। एक बूंद क्रेडिट नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा क्रेडिट केवल एक है कि मेरे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं में कोई घालमेल नहीं किया। यही क्रेडिट है, ये है महानता। तो वो भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते प्रभुपाद। प्रभुपाद ये कहते हैं कि आप घालमेल मत करो, आप अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ मत करो तत्व को। जैसा है वैसा बता दो। प्रभुपाद लेक्चर में भी कहते हैं, जैसा है वैसा बता दो, कृष्ण जैसा है वैसा बता दो, जीव का कल्याण करो, भगवान को प्रसन्न करो। जब जीव को आप भगवान से जोड़ोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना। जब जीव को आप आचार्य से जोड़ोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना। क्योंकि भगवान के भूले हुए बच्चे को आप उनके पास ले जा रहे हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। परंतु इस संसार के लोग सब चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े। हमसे क्यों जुड़े? हम कौन है? हम आज हैं, कल मर जाएंगे। तो हम हम फेस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। हम एक ड्राइवर है। ड्राइवर का काम है सबको बस में बिठाना, बस सही तरीके से चला के, जिसका जो सामान है, जिसके जो व्यक्ति वस्तु है, जिसके जो लोग हैं, उनको वहां पर पहुंचा देना। भैया प्रभु ये आपके दास हैं, आचार्य ये आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ ये आपको समर्पित है। हमारा तो कुछ नहीं, सब कुछ आचार्य का, सब कुछ कृष्ण का है, कुछ भी नहीं है हमारा। और चूंकि जब वो ऐसी सेवा को छोड़ता है तो क्या करता है, फंस जाता है। He therefore becomes entangled in the chain of birth and death, जन्म और मृत्यु के, चक्र में वो फंस जाता है। Birth and death by transmigrating into different bodies, हाँ, संगात संजायते कामान, हाँ, गुण कर्म विभागश। और फिर क्या कहते हैं भगवान,
ये संसार में जितने भी जीव है, किसके संग से? गुणों के संग से प्रकट हो जाते हैं अलग अलग योनि। तो जैसी इच्छा करते हैं वैसी गति मिलती है फिर हमें। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। वन कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम थ्री फोल्ड। और वो कहां पर भी हो सकता है, डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अनलेस देयरफॉर वन इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ दिस साइंस, ये जो अज्ञानता है इससे जब तक व्यक्ति परे नहीं होता, वन कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ मटेरियल लाइफ। जब तक ये अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, स्वरूप क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, यही प्रकृति का नियम है, तब तक उसको वापस आना पड़ेगा। द लॉर्ड हाउएवर, परंतु भगवान, आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, because he is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them। अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए हाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, और क्या करते हैं? रिनोवेट्स, रिवाइव करते हैं। क्या रिवाइव करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रिवाइव करते हैं। Hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating, and surrendering unto Him। नवदा भक्ति के प्रिंसिपल्स को रिवाइव करते हैं। अडॉप्शन ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड आइटम्स, जब हम ये नवदा भक्ति को स्वीकार करते हैं, और एनी वन ऑफ देम, या फिर उनमें से किसी एक को स्वीकार करते हैं, कैन हेल्प अ कंडीशन सोल, वो मदद कर सकता है एक बद्ध आत्मा को गेट आउट ऑफ द टैंगल ऑफ निसाइंस, ये जो अज्ञानता का सागर है इससे वो निकल सकता है, एंड दस बिकम लिबरेटेड, इस प्रकार वो मुक्त हो सकता है फ्रॉम ऑल मटेरियल सफरिंग्स क्रिएटेड बाय द लिविंग बीइंग, जो कि लिविंग बीइंग्स के द्वारा क्रिएटेड, इल्यूजन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी, जो बाह्य प्रकृति से भ्रमित है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्सी इज bestowed upon living being by the Lord in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। और ये जो कृपा है जीव के ऊपर प्रकट होती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ताई प्रेमानंदे। हरि हरि।